بسم अल्लाह الرحمن الرحیم۔ قاسم بلخی فاطمہ کو ذرا دور لے گیا اور اسے بٹھا کر خود دبے پاؤں چلتا ہوا عمران کے پاس گیا جہاں وہ سویا ہوا تھا۔ زادرہ کی تھیلی عمران نے سرہانے رکھی ہوئی تھی۔ بلخی نے بڑی احتیاط سے تھیلی نکالی۔ تھکاوٹ کی وجہ سے عمران کو معلوم ہی نہ ہو سکا، وہ مسلسل سویا رہا۔ تھیلی بلخی نے نکال لی۔ وہ اسی طرح تھیلی لے کر دبے پاؤں فاطمہ کے پاس آیا اور اسے ساتھ لے کر گھوڑوں کے پاس گیا۔ اس نے 2 گھوڑوں پر زینے کسیں، ایک خود پکڑا، دوسرا فاطمہ کو دیا اور وہاں سے چل دیے۔ وہ دونوں کچھ دور پیدل چلے، پھر بلخی نے فاطمہ کو گھوڑے پر سوار ہونے کا اشارہ کیا۔ فاطمہ نے بتایا کہ وہ سواری کرنا نہیں جانتی۔ بلخی نے فاطمہ کے گھوڑے کی لگام اپنے گھوڑے کی زین کے ساتھ باندھ دی۔ فاطمہ کو اپنے گھوڑے پر اپنے آگے بٹھا لیا اور چل پڑے۔ تھیلی فاطمہ کے ہاتھ میں تھی۔ بلخی نے فاطمہ کے گرد اپنا ایک بازو ڈال کر اس کی پشت کو اپنے سینے کے ساتھ لگا لیا اور گھوڑے کو ایڑ لگا دی۔ اب انہیں بھاگنا تھا۔ جب 2 گھوڑے سار پٹ بھاگے تو رات کی خاموشی میں 2 گھوڑوں کے ٹاپوں کی آواز گونج اٹھی۔ سب سے پہلے عمران بیدار ہوا۔ عمران نے اٹھتے ہی سب سے پہلے تھیلی دیکھی تو تھیلی وہاں نہیں تھی۔ اوریزی اور جگ موہن بھی جاگ گئے۔ انہوں نے جا کر گھوڑے دیکھے تو 2 گھوڑے غائب تھے۔ قاسم بلخی اور فاطمہ بھی غائب تھی۔ اوریزی نے کہا کہ عمران چلو ان کا پیچھا کرتے ہیں، وہ زیادہ دور نہیں گئے ہوں گے۔ میں اس بلخی کو اپنے ہاتھوں سے قتل کروں گا۔ عمران نے کہا کہ جس لڑکی کو وہ لے گیا ہے وہ ہماری ملکیت نہیں تھی، اور جو خزانہ وہ لے گیا ہے وہ سلطنت غزنی کا خزانہ نہیں تھا۔ انہیں پکڑنا ہمارے فرائض میں شامل نہیں بلکہ فرض سے انحراف ہوتا ہے۔ عمران نے کہا کہ نظام بھائی، میں تم دونوں کو اسی لیے جلدی راجہ کی قید سے آزاد کرانا چاہتا تھا کہ راجہ کا اگلا حربہ یہی ہونا تھا کہ ایک خوبصورت دوشیزہ تم دونوں کے درمیان بٹھا دی جانی تھی، اور اس کے بعد نہ تم ملک کے رہنے تھے نہ مذہب کا رہنا تھا۔ تم ہندو راجہ کے اعلی کار بن کر اپنی ہی سلطنت کے لیے خطرہ بن جاتے۔ یہ نسوانی حسن اور سونے کا اثر ہے جو پتھروں کو بھی موم کر دیتا ہے۔ یہ دین ایمان کا بڑا ہی سخت امتحان ہوتا ہے۔ گھوڑوں کی آواز دور ہوتی چلی گئی اور پھر رات کی تاریکی میں تحلیل ہو گئی۔ اوریزی نے کہا کہ عمران، میری تو نیند اڑ گئی ہے، چلو اب چل پڑتے ہیں۔ انہوں نے ایک گھوڑے پر رشی کو سوار کیا اور دوسرے پر جگ موہن کو، اور عمران اور اوریزی ساتھ پیدل چل پڑے۔ انہوں نے فیصلہ کیا کہ باری باری سواری کریں گے۔ رشی کے گھوڑے کی باگ عمران نے پکڑ لی اور چل پڑے۔ رشی نے کہا کہ وہ فاطمہ کو زبردستی لے گیا ہوگا۔ عمران نے کہا کہ نہیں، مجھے یقین ہے کہ وہ خود بھاگی ہے، کہ قاسم کو وہ بھگا کر لے گئی ہے۔ اچھا ہوا وہ چلی گئی ہے۔ صبح طلوع ہوئی تو بلخی اور فاطمہ بہت دور نکل گئے تھے۔ وہ گھوڑے دوڑاتے ہوئے جا رہے تھے۔ قاسم بلخی اس راستے پر جا رہا تھا جو ان فوجوں نے بنایا تھا جو ہندوستان پر حملہ آور ہوتی رہتی تھی۔ قاسم اسی راستے سے قیدی کی حیثیت سے راجہ کی بچی کچی فوج کے ساتھ گزرا تھا۔ یہ واحد راستہ تھا جس پر بھٹکنے کا خطرہ کم ہوتا تھا۔ جب سورج پہاڑوں کے عقب سے ابھرا تو بلخی کو پہاڑوں کا ایک ایک پتھر نظر آنے لگا۔ تب اسے خیال آیا کہ وہ مجرم اور چور ہے۔ عمران اور اوریزی لازمی اس کے تعاقب میں آ رہے ہوں گے، اسی لیے وہ گھوڑا دوڑاتا جا رہا تھا۔ وہ پرانا اور تجربہ کار سپاہی اور گھوڑ سوار تھا، مگر جرم کا بوجھ اس پر بھاری پڑ رہا تھا۔ اس نے اسے سوچنے ہی نہ دیا کہ گھوڑے تھک جائیں گے۔ یہ علاقہ میدانی نہیں، پہاڑی ہے۔ راستہ گھومتا اور اوپر ہی اوپر چڑھتا جا رہا تھا۔ گناہ ایک ایسا جرم ہے جو انسان کے ہوش و حواس چھین لیتا ہے۔ پھر گناہ کے ساتھ لالچ شامل ہو جائے تو انسان مزید اندھا ہو جاتا ہے، اور پھر اگر ساتھ کوئی حسین عورت شامل ہو جائے پھر تو انسان میں انسانیت ہی ختم ہو جاتی ہے اور وہ اعلیٰ درجے کا حیوان بن جاتا ہے۔ وہ عقل و شعور سے عاری ہو جاتا ہے اور ایک ایسا ڈر اس پر مسلط ہو جاتا ہے جو اسے کہیں بھی چین سے نہیں رہنے دیتا۔ وہ بھاگتا ہے مگر اس کا جرم اس کا ساتھ نہیں چھوڑتا، ایک کالے ناگ کی طرح اسے ڈستا رہتا ہے۔ اس گھوڑے کی حالت تو بہت ہی پتلی ہو چکی تھی جس پر وہ دونوں سوار تھے۔ وہ گھوڑا پسینے میں نہا گیا تھا اور تھک چکا تھا، اس کی سانسیں پھول رہی تھیں۔ دوسرے گھوڑے کی حالت اس لیے بہتر تھی کہ وہ خالی ساتھ ساتھ بھاگ رہا تھا، اس پر زین کے سوا کچھ وزن نہ تھا۔ قاسم بلخی نے گھوڑا روکا اور ادھر ادھر دیکھا مگر گھاس کی ایک پٹی بھی نظر نہ آ رہی تھی اور نہ کہیں پانی کا نام و نشان تھا۔ اس خطرے کے پیش نظر کہ عمران لوگ اس کا پیچھا کر رہے ہوں گے، وہ راستے سے اتر گیا اور ایک عمودی چٹان کے سائے میں رک گیا۔ ذرا سی دیر کے لیے وہ رکا اور پھر دوسرے گھوڑے پر سوار ہو گیا۔ فاطمہ پہلے کی طرح اس کے آگے بیٹھ گئی، تھیلی اس کے ہاتھ میں تھی۔ اوپر آ کر پھر گھوڑے کو
उसी रास्ते पर डाल दिया और भगाना शुरू कर दिया। बल्कि और फातिमा के ताक़ुब में कोई नहीं आ रहा था। इमरान पैदल इंसान की रफ्तार के साथ अपने साथियों को साथ लिए नॉर्मल हालत में चला आ रहा था। वो बारी बारी घोड़े पर सवार होते, मगर रशी को सवार रहने दिया, उसे पैदल ना चलाया। सूरज ऊपर आ गया तो भी वो चलते गए, क्योंकि पहाड़ों का साया उन्हें मदद दे रहा था। गर्मी बढ़ गई और मजीद चलना मुश्किल हो गया, तो उन्होंने एक जगह देख ली जहां शाम तक साया रह सकता था। इमरान ने शाम तक के लिए काफिले को वहीं रोक लिया। कासम बल्कि रास्ते में किसी भी जगह रुकने से डर रहा था। जिस्म की लज्जत की खातिर वो लड़की को साथ भगा लाया था। अब उस जिस्म से आहिस्ता आहिस्ता तवानाई कम होती जा रही थी। फातिमा ने अपने पहलुओं पर हाथ रखकर अपने चेहरे पर दर्द का तासुर पैदा करते हुए बल्ही को समझाने की कोशिश की कि उसके जिस्म का अंग अंग दर्द कर रहा है, इसलिए वो मजीद घोड़े पर सफर नहीं कर सकती, उसे आराम की जरूरत है। बल्कि ने मुस्कुराकर अपना बाजू उसके सीने के गिर्द लपेट कर उसे अपने साथ लगा लिया। फातिमा ने सर इतना पीछे कर लिया कि बल्ही के रुखसार फातिमा के रुखसार के साथ लग गए, मगर बल्ही को महसूस हुआ कि फातिमा पहले जैसी खूबसूरत नहीं रही है जितनी पहले थी। वो अपने ऊपर फातिमा का बोझ महसूस करने लगा। उसने फातिमा को आगे करके अपना जिस्म उससे अलग कर लिया। दोनों के कपड़े पसीने से भीग कर जिस्म के साथ चिपके हुए थे। कासम बल्खी को कोफत सी महसूस हुई, फिर उसे गुस्सा आने लगा। वो देख रहा था कि ये घोड़ा भी थक चुका है। दरअसल चढ़ाई चढ़ते चढ़ते घोड़े का दम खम खत्म हो गया था। दूसरा घोड़ा पहले ही थका हुआ था। ये कोई जंगी घोड़े नहीं थे, बल्कि किसी अस्तबल के सैरो तफरी के लिए इस्तेमाल होने वाले घोड़े थे, जो थोड़ा सा सफर करके फारिग कर दिए जाते थे। जगमोहन भी ये घोड़े ये कहकर लाया था कि मेहमानों को सैर करवानी है। फिर ये घोड़े भूख प्यास भी इतनी बर्दाश्त नहीं कर सकते थे और ना पहाड़ों पर सफर करने के आदी थे। कासम ने इसका हल ये सोचा कि मेन रास्ते से हटकर रास्ता तलाश करे और वादियों के अंदर अंदर चले। ये सोचकर उसने घोड़ा नीचे उतार दिया। सूरज सर पर आ गया था और उसने आग उगलना शुरू कर दी थी, जो बर्दाश्त से बाहर थी। दोनों घोड़े से उतरकर पैदल चलने लगे। फातिमा चंद कदम चलकर हिम्मत हार गई। पहाड़ डराने लगे। बल्खी ने उसकी हौसला अफजाई की और मुस्कुराया भी, मगर बल्खी का अपना हौसला टूट चुका था। उनके घोड़े अब वजन के बगैर कदम घसीट घसीट कर चल रहे थे। बल्खी ने एक चट्टान का साया देखा तो वहीं बैठ गया। फातिमा उसके करीब ढेर होने वाले अंदाज में बैठ गई। थैली अब भी उसके हाथ में थी, जिसे उसने कासम के आगे यूं फेंक दिया जैसे उसे अब उसके साथ कोई दिलचस्पी ना रही हो। घोड़े बेचैनी से इधर उधर देख रहे थे। फातिमा ने हाथ होंठों पर रखकर बल्खी को बताया कि वो प्यास से मरी जा रही है, कुछ पानी का बंदोबस्त करो। बल्खी उठा और इधर उधर घूम फिर कर वापस फातिमा के पास आकर बैठ गया। सूरज गरूब होने के बाद इमरान के काफिले ने वो खुश्क मेवे खाए जो वो पेशावर से पहले एक गांव से खरीद लाया था। पानी का छोटा मशकीज़ा अभी बाकी था। सब ने पानी पिया और चल पड़े। वो कासम और फातिमा से अभी बहुत दूर थे। इमरान ने कहा कि हमारा सफ़र थोड़ा रह गया है, मगर सफ़र का यही हिस्सा मुश्किल और सब्र आजमा है। घोड़े प्यासे हैं, हम उन्हें दौड़ा नहीं सकते। ये प्यासे ना भी हों तो पहाड़ी इलाके में दौड़ाने के काबिल नहीं हैं। हमें गजनी पहुंचना है। अगर हमें अच्छी किस्म का घोड़ा मिल गया तो हम में से एक तेज़ी के साथ गजनी पहुंच सकता है। अगर कोई सवार मिल गया तो मैं उसे कत्ल कर दूंगा, क्योंकि हमें घोड़ा हर हाल में चाहिए। रशी ने हंस कर कहा कि इमरान, तुम इस्लाम को खुदा का मजहब कहते हो, अपने खुदा से कहो ना कि घोड़ों को पानी पिला दे। इमरान ने कहा कि कहने की ज़रूरत नहीं है, ये घोड़े प्यास से नहीं मरेंगे। हम खुदा की राह पर चल रहे हैं। हमने ये सारा सफ़र खुदा की अमान में ही तय किया है। राजा जयपाल ने ओरेजी और बल्खी को पकड़ने के लिए पेशावर से आगे तक रास्ते रोक रखे थे, मगर हम निकल आए हैं। मैं तुम्हें अपने रब के मुतल्लिक एक राज बताता हूँ। मैं मुल्तान का नहीं हूँ, बल्कि गजनी का रहने वाला हूँ, और मैं एक जासूस हूँ। मेरे दोनों साथी गजनी की फौज के ओहदेदार हैं, मगर राजा की कैद में थे। मैंने उन्हें वहां से फरार कराया। मैं तुम्हें भी मौत के मुंह से निकाल कर ले आया हूँ। मैंने चूंकि ये दोनों काम अल्लाह की खुशनुदी के लिए किए थे, इसलिए अल्लाह ने मुझे कामयाबी से नवाजा। और वो दोनों गुनाहगार जो हमें लूट कर भाग गए हैं, उनका अंजाम भयानक होगा। हमारे दिलों में अल्लाह की खुशनुदी रही तो ये पत्थर भी हमें पानी देंगे। और फिर पत्थरों ने उन्हें पानी दिया। निसफ रात गुजर गई थी और चांद ऊपर आ गया था। घोड़े अपनी चाल चले जा रहे थे। दाईं तरफ एक वादी
रास्ते से आकर मिलती थी। वहां जाकर दोनों घोड़े रुक गए। लगामें झटकने पर भी ना चले। इमरान ने घोड़ों के मुंह देखे तो दोनों के नथने फूले हुए थे और दोनों वादी की तरफ देखे जा रहे थे। दोनों आहिस्ता आहिस्ता हुनहुनाए और वादी की तरफ चल पड़े। इमरान ने कहा कि नीचे उतर आओ रशी, घोड़ों ने पानी की बू पा ली है, पानी बहुत करीब है। इमरान ने रशी को बाजुओं में लेकर घोड़े से नीचे उतारा। दूसरे घोड़े पर निजाम और एजी सवार था, वो भी नीचे उतर गया। दोनों घोड़े वादी के अंदर दौड़ पड़े। कुदरत ने जानवरों को यह वस्फ अता कर रखा है कि वो पानी की बू दूर से सूंघ लेते हैं। बाज छोटे जानवर और परिंदे बारिश से पहले महसूस कर लेते हैं कि बारिश बरसेगी। उन घोड़ों ने पानी की मुश्क पा ली थी। इमरान ने अपने साथियों को पहले बता रखा था कि इन वादियों में कहीं ना कहीं पानी मिल जाता है। घोड़े दौड़ते गए। इमरान भी अपने साथियों समेत घोड़ों के पीछे पीछे चलता गया। कुछ दूर अंदर जाकर घोड़े रुक गए। वहां पहाड़ का दामन एक वसी गार की सूरत में कटा हुआ था। चांद की चांदनी में वहां पानी साफ नजर आ रहा था। वहां शायद चश्मा था। घोड़े पानी पी रहे थे। पानी की वजह से वहां थोड़ी घास भी उगी हुई थी। पानी पीकर घोड़े घास खाने लगे। इमरान लोग बैठ गए ताकि घोड़े सैर हो सकें और वो भी आराम कर सकें। उस वक़्त बलखी और फातिमा गजनी की तरफ जा रहे थे। वो जा कहीं भी नहीं रहे थे, बल्कि वादियों में भटक रहे थे। बल्कि आम रास्ते से जाने से डर रहा था। उसकी तवक्को थी कि वादियों के अंदर अंदर से लुमगान पहुंच जाएगा, मगर ये वादियां ऐसी थीं कि घूम फिर कर एक दूसरे में गुड हो जाती थीं। घोड़े भी थक गए थे और ये दोनों भी हिम्मत हार चुके थे। बल्कि ने एक जगह घोड़ा रोक लिया और दोनों नीचे उतर आए। बल्कि लेट गया। उसे थकावट और भूख प्यास के साथ साथ नींद भी तंग कर रही थी। फातिमा बल्कि के पहलू में इस तरह लेटी कि आधा जिस्म उसका बल्कि के जिस्म पर था और आधा नीचे। बल्कि ने उसे बाजुओं में दबोच लिया। फातिमा ने अपना आप बल्कि के सुपुर्द कर दिया। फातिमा के जिस्म ने बल्कि पर नशा तारी कर दिया। वो रास्ते से तो भटक गए थे, मगर राह फरार मौजूद थी जो दोनों ने एक दूसरे में देख ली। वो थकन और अपने अंजाम को भूल गए। बल्कि ने उसे नशे की सी कैफियत में सबज बाग दिखाए और वो ख्वाबो ख्याल की दुनिया में पहुंच गए और फिर सो गए। कासम बल्कि घबरा कर उठा। रात गुजर गई थी। सूरज चमक रहा था। उसने देखा कि कल वो इसी जगह से गुजरे थे। उसने फातिमा को जगाया। वो एक दूसरे का सामना करने से घबरा रहे थे। वो रवाना होने के लिए उठे तो देखा कि घोड़े गायब थे। उन्होंने इधर उधर देखा, मगर घोड़े कहीं भी नजर ना आए। बल्कि के दिल में यह डर पैदा हो गया कि उसके साथी आए थे और घोड़े ले गए हैं, तो उन्हें प्यासा भटक कर मरने के लिए छोड़ गए हैं। लेकिन घोड़े पानी और चारे की तलाश में दूर निकल गए थे। बल्कि उठकर घोड़ों की तलाश में दौड़ा, मगर थक हार कर वापस फातिमा के पास आ गया। उसने फातिमा का बाजू पकड़ा और पागलों की तरह एक तरफ दौड़ पड़ा। फातिमा दौड़ते दौड़ते थक कर गिर पड़ी। उसमें अब चलने की हिम्मत नहीं थी। बल्कि ने उसे उठाकर कंधों पर डाला, एक हाथ में थैली पकड़ी और चल पड़ा। उसके दिल में यही डर था कि इमरान और ओरेजी करीब ही कहीं मौजूद हैं, और जब वो भाग भाग कर बेहाल हो चुका होगा तो वो उससे थैली और फातिमा को छीन कर ले जाएंगे। चोरी का गुनाह और गुज़िश्ता रात का गुनाह चुड़ैलों और बदरूही की तरह उसके गिर्द नाच रहा था। वो थक कर एक जगह बैठ गया और फातिमा को उठाकर अपने सीने से इस तरह लगा लिया जिस तरह शरीर बच्चा अपना खिलौना छुपाया करता है, और थैली उसने अपनी पीठ के नीचे रख ली। वो अक्ल होश खो बैठा था। सम उसे फातिमा की सरगोशी सुनाई दी। फातिमा का प्यास की वजह से बुरा हाल था और उसका मुंह खुल गया। जुबान होंठों पर आ गई थी। फातिमा को होश में आता देखकर बल्कि की हालत संभलने लगी। उसने फातिमा को पकड़कर अपने सामने बिठा लिया और उसे कंधों से झंझोड़ते हुए बोला, फातिमा, तुम मेरी बात नहीं समझोगी। कासम बल्कि ने अपनी जुबान में बोलना शुरू कर दिया। हम बलख के रास्ते से नहीं, खुदा के रास्ते से भटक गए हैं। इस रास्ते से हट जाने वालों का यही अंजाम होता है। मैं मर्दे मैदान था। मैदान जंग में ऐसी ही पहाड़ियों में, बर्फबारी में, रेगिस्तानों में लड़कर जख्मी हुआ। मेरे साथी भी जख्मी हुए। बाज के बाजू तक कट गए, टांगे भी कट गईं। हम भूखे प्यासे रहे थे। हमारे जख्मों से खून बह गया, मगर हम कभी इस तरह बेबस और लाचार नहीं हुए जिस तरह आज मैं हो गया हूँ। मेरे जिस्म से खून और पसीना निकलकर इस तरह तवानाई खत्म नहीं होती थी जिस तरह आज हो गई है। जानती हो क्यों? उसने फातिमा को झंझोड़ा।
मगर वो उसकी जुबान नहीं समझती थी। वो मुंह और आंखें खोले उसे देख रही थी। वो इतना समझ गई थी कि जिस खूबरू जवान को उसने जज्बात की प्यास बुझाने वाला चश्मा समझ रखा था, वो जहनी तवाज़न खो बैठा है। वो चश्मा सूख चुका है। कासम बोलता गया, मैदान जंग में मेरा जिस्म नहीं, मेरी रूह लड़ा करती थी। मैं चोर नहीं था। मैं जिस्मानी लज्जत के लिए नहीं, बल्कि रूहानी लज्जत के लिए लड़ा करता था। अब हम दोनों को जिस्मानी प्यास और सोने ने गुमराह कर दिया है। सिर्फ 2-3 रोज पैदल चलने के बाद अब मेरे जिस्म में जान बाकी नहीं रही। मुझे अपने और तुम्हारे जिस्म से बदबू आती है। हम गुनाहगार हैं फातिमा, और गुनाहगारों को मंजिल नहीं मिलती। गुनाहगारों का बुरा अंजाम हुआ करता है। वो इस दुनिया में ऐश करते हैं और अगले जहान में जला करते हैं, या हम जैसे इसी दुनिया में जल जल कर मरते हैं। मंजिल मेरे दोस्तों को मिलेगी जो सीधी राह पर हैं। उन हिंदू बहन भाई को मिलेगी जिन्होंने ये राज पा लिया कि मिट्टी और पत्थर के खुदा नहीं होते। इमरान ने उन्हें खुदाए वहदहु ला शरीक दिखाया, और अब हमें मरना है। कासम बल्खी को गुनाह का एहसास शदीद हद तक हो गया था। उसकी आवाज़ बुलंद होती जा रही थी और फिर बोलते हुए उसके अल्फाज लड़खड़ाने लगे। फातिमा ने उसके मुंह पर हाथ रखा। वो बिजारो की तार रो रही थी। होश में आओ कासम, फातिमा ने रोते हुए कहा। मैं तो तुम्हारे सहारे पर तुम्हारे साथ आई थी। कासम ने उसे अपनी जुबान में कहा कि मालूम नहीं तुम क्या कह रही हो। वो उठ खड़ा हुआ और फातिमा का बाजू पकड़ते हुए बोला कि आओ यहाँ से चलते हैं। शायद मरने के लिए इससे बेहतर जगह हमें मिल जाए। इमरान अपने काफिले के साथ चलता जा रहा था। सफर के 1.5 या 2 दिन बाकी थे। अब रास्ता नीचे की तरफ जा रहा था। रास्ते में घोड़ों के लिए पानी और चारा एक बार फिर मिल गया था, पर घोड़ों की रफ्तार तेज नहीं हो सकती थी क्योंकि 2 आदमियों को साथ पैदल चलना पड़ रहा था। दूसरी वजह ये घोड़े पहाड़ी इलाके में भगाने के काबिल नहीं थे। अचानक ओरेजी को नीचे वादी में बाईं तरफ 2 घोड़े खड़े नजर आए। वहां कुछ घास थी जो ये घोड़े खा रहे थे। घोड़ों पर जीनें कसी हुई थी, मगर कोई सवार नजर नहीं आ रहा था। ओरेजी ने इमरान से कहा कि तुमने कहा था कि रास्ते में अगर कोई घोड़ा मिल जाए तो तुम उसके सवार को कत्ल करके घोड़ा हासिल कर लोगे। वो देखो 2 घोड़े। इमरान ने उस तरफ देखा तो बोला, अगर मेरी आंखें धोखा नहीं खा रही तो ये हमारे ही घोड़े हैं जो कासिम और फातिमा चुरा कर ले गए थे। नीचे उतरने का रास्ता देखकर वो लोग नीचे उतर गए। करीब जाकर देखा तो वही घोड़े थे जो कासिम बल्खी लेकर भागा था, मगर वो खुद कहीं नजर नहीं आ रहा था। तलाश के बावजूद वो नजर ना आए। इमरान और अंग्रेजी ने कासिम को पुकारना शुरू कर दिया। सामने आ जाओ कासिम, हम भूल जाएंगे कि तुमने क्या किया था। दोस्तों की तरह आ जाओ कासिम। मगर कोई जवाब ना आया। रेजी ने कहा, इमरान उधर देखो, गिद्ध उतर रहे हैं। और रेजी फौजी था। उसे मालूम था कि जब जंग खत्म हो जाती है तो वहां गिद्धों के गोल उतरना शुरू हो जाते हैं। वहां गिद्ध उतर रहे थे तो उसका मतलब था कि वहां किसी न किसी जानदार की लाश है। खान ने गिद्ध उतरते देख लिए। वो दोनों भी उन मिलने वाले घोड़ों पर सवार हो गए। ऋषि और जगमोहन भी बाकी 2 घोड़ों पर सवार हो गए। चारों उस तरफ चल पड़े जिधर गिद्ध उतर रहे थे। वो जगह कम से कम 1 मील की दूरी पर थी। करीब जाकर उन्होंने गिद्धों को पत्थर मारने शुरू कर दिए ताकि वो देख सकें कि गिद्ध किस चीज का गोश्त नोच रहे थे। वो 2 इंसानों की लाशें थीं, एक कासम बल्खी की और दूसरी फातिमा की। दोनों के पेट गिद्धों ने फाड़ डाले थे और गोश्त नोच कर खा लिया था। जेवरात और नकदी की थैली बल्खी ने अपने हाथ में पकड़ रखी थी। खान ने बल्खी की उंगलियों की गिरफ्त से थैली निकालने की कोशिश की, मगर कोशिश के बावजूद वो उसकी गिरफ्त खोल ना सका। उसकी उंगलियां अकड़ गई थीं। और रेजी ने कहा, रहने दो इमरान, यह खजाना इसके पास ही रहने दो। शायद इस खजाने की वजह से इनकी रूहों को चैन मिल सके। इमरान ने कहा कि मुझे यकीन है कि ये भूख और प्यास की वजह से मरे हैं। अगर उनको राहजन या डाकू मारते तो वो थैली और फातिमा को साथ ले जाते और बल्खी को कत्ल कर डालते। यह बदनसीब थोड़ा और आगे तक जा सकते जहां उनके घोड़े खड़े थे तो उनको पानी मुयस्सर आ जाता। इबरत हासिल करो दोस्तों, इतनी दौलत होने के बावजूद इन्हें मौत ने आन लिया। सोना पैसे खाए पिए नहीं जा सकते, बल्कि ये इन इंसानों को खा जाते हैं जो उनकी हवस में दीवाने हो जाते हैं। उसने रशी से कहा कि देख लो हसद करने का अंजाम। फातिमा अपने हुस्न और जवानी के जाल में मुझे फांसना चाहती थी, मगर कासम फंस गया। फातिमा को अपने हुस्न पर बड़ा नाज था। रशी जो अब इस्लाम में दाखिल होकर रजिया बन चुकी थी, उसकी आंखों से आंसू निकल पड़े।
اب وہ 4 تھے اور گھوڑے بھی 4 تھے۔ وہ روانہ ہو گئے اور شام تک اس خطے میں داخل ہو گئے جسے لغمان کہا جاتا ہے۔ یہ خطہ سرسبز و شاداب تھا۔